Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to start our next subject, which is marketing management. First of all, we will discuss the syllabus of marketing management, which we will cover in the entire upcoming series. And then we will discuss introduction to marketing, meaning to marketing, activities included in marketing and definition of marketing, right? And in the next lecture we will discuss the characteristics of marketing. Let's start. First unit is marketing, which include meaning, scope and importance, evolution of marketing, understanding marketing in new perspective, managing the marketing mix, marketing environment. In the second unit, information system and marketing research includes importance, scope and steps of marketing research process. Understanding consumer behavior, analysis, business markets, consumer relationship management. Third unit is product, which includes concept and classification, new product development, product mix and product line strategies, product life cycle strategies, branding, packaging, labeling and warranty. Next unit is price, which includes the topics price determination, pricing policies and pricing strategies. Next unit is promotion program, which includes the topics like advertising, sales promotion, public relations, publicity and personal selling. Next unit is place, which includes the topics like distribution logistics and supply chain management, marketing channels, retailing, wholesaling and physical distribution. Social, ethical and legal aspects of marketing. Next one is marketing and information economy, direct and online marketing. Now, moving towards the introduction to marketing. Introduction. देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट को रीड करने से पहले मार्केटिंग है क्या, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस कंसेप्ट से. ठीक है, देखो, मार्केटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मार्केटिंग क्या है, मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट. इट सेट्स द इकोनॉमी रिवॉल्विंग. ये क्या करता है, इकोनॉमी को रिवॉल्व रखता है. ये इट मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नो मीनिंग अनलेस द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी. देखो, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ, उसका तब तक कोई यूज नहीं होगा जब तक आप उन प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं करते हो फॉर द सेक ऑफ मनी. ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंट गुड्स की प्रोडक्शन है, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे मार्केटिंग भी करो उस गुड्स की, राइट. दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. इसका क्या मतलब हुआ कि आपने गुड्स को मूव करना है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स. Goods and services do not move automatically from the producers to the ultimate users. और ये जो हमने बोला कि हमें मूवमेंट करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होती. ठीक है, इसके पीछे डेफिनेट मैकेनिज्म होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करता है. ट्रांसफर इन द सेंस एक्सचेंज करता है. ठीक है, देयर इज अ डेफिनेट मैकेनिज्म that brings about exchange of goods and services against money for mutual benefit. अब वो mutual benefit क्या होता है, देखो, goods and services की आप exchange किसके बीच में कर रहे हो, two parties के बीच में, that is first one is producer and the second one is consumer. ठीक है, अब consumer का क्या mutual benefit हो सकता है इसमें, satisfaction of the consumer. उसको क्या हो, satisfaction मिले उसे consume करके, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके वो सेटिस्फाइड रहे. और अगर हम बात करें प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर्स के व्यू पॉइंट से, तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स हों.
ठीक है, वो सरप्लस गेन कर सके। बट टू डिफरेंट पर्सन्स द टर्म मार्केटिंग मीन्स डिफरेंटली। देखो मार्केटिंग को ना हर पर्सन डिफरेंट वे में लेता है। टू सम इट मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स एंड टू सम अदर्स इट इज नथिंग बट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। देखो कुछ लोगों के लिए मार्केटिंग होता है सेल ऑफ गुड्स, कि आपने क्या करना है, गुड्स को सेल करना है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कुछ अदर लोगों की, तो कुछ और लोग ये सोचते हैं कि मार्केटिंग मीन्स पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है। और सम कंसीडर मार्केटिंग एज द सम टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और कुछ लोगों का मानना ये है कि मार्केटिंग क्या है, सम टोटल है, एग्रीगेट है उन सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का जो हेल्प करती हैं गुड्स को फ्लो करने में फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, मीन्स हर पर्सन का अपना अपना परसेप्शन है मार्केटिंग को देखने का। ठीक है, देखो मार्केटिंग इज द बेल्ट दैट कनेक्ट्स द टू मेजर व्हील्स ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा बेल्ट है, एक ऐसा ब्रिज माना गया है जो कनेक्ट करता है टू व्हील्स को। ठीक है, इकोनॉमी के टू व्हील्स को कनेक्ट करता है, और वो दो व्हील्स कौन से हैं आपके, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीनिंग सबसे पहले करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्केट। देखो सबको आई थिंक पता होगा, जनरल टर्म है, हम डेली अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं ये। ठीक है, मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स गेट टुगेदर एंड मेक डील्स रिगार्डिंग सेल और परचेज। मार्केटिंग क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, दे गेट टुगेदर। ठीक है, और कुछ वो डीलिंग्स करते हैं रिगार्डिंग देयर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। नाउ मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड, and by doing transactions independently the needs of the customers are satisfied। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ वैल्यूएबल गुड्स या फिर सर्विसेज को आप क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, देन ऑफर करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स करके इंडिपेंडेंटली आप क्या करते हो, जो आपके कस्टमर्स की नीड्स हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, वेदर दे आर पोटेंशियल, वेदर दे आर रियलिटी, ठीक है, रियल कस्टमर्स हैं आपके या फिर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप कुछ इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स करके उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो मार्केटिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड, एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन्स इंडिपेंडेंटली द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। इन अदर वर्ड्स, marketing refers to the sum total of all those activities which move goods and services from the producer to the consumers। देखो मार्केटिंग क्या है, एक एग्रीगेट है उन सभी एक्टिविटीज का जो हेल्प करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करने में फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर्स टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग prospective buyers into actual customers by communicating complete information of their product or services to the customers। देखो मार्केटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प करेगा आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को कन्वर्ट करने में इनटू द एक्चुअल कस्टमर्स। ठीक है, और कैसे करना है उन्हें कन्वर्ट, बाय कम्युनिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। आपके जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं आप उन्हें अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे इनटू द एक्चुअल कस्टमर्स। देखो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हु आर प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड हु आर द एक्चुअल कस्टमर्स। देखो प्रोस्पेक्टिव बायर्स वो होते हैं जो आपके अभी तक कस्टमर नहीं बने हैं, मे भी फ्यूचर में आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। ठीक है, अभी वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन
अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे, उनका जो भी आपका प्रोडक्ट है उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, तो मे बी वो फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। जब वो आपके प्रोडक्ट को एक्चुअल में बाय कर लेंगे, देन दे विल बिकम योर एक्चुअल कस्टमर्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब है कि बन सकते हैं फ्यूचर में आपके कस्टमर, बट अभी वो आपके बायर्स नहीं है, राइट। नाउ, marketing is an ongoing practice to capture customers' attention towards a product or service. Marketing क्या है? एक ongoing practice है, एक ongoing process है। देखो, जिस भी वर्ड के पीछे आपके ing लगता है ना, it means that is a process। वो कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, उसके अंदर कई सीक्वेंस मतलब अटैच्ड होती हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। मार्केटिंग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है जो आपने कंप्लीट करनी है, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे, जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, एक जर्नल सा एक मतलब रूल होता है कि जिस भी टर्म के पीछे आईएनजी लगा होता है, अटैच्ड होगा, इट मीन्स वो आपका हमेशा प्रोसेस होता है। ठीक है, और प्रोसेस ऑब्वियस है कि वो ऑन गोइंग होगा, प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, इट इज़ नेवर एंडिंग। देखो, मार्केटिंग इज एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है, किसके लिए? टू कैप्चर कस्टमर्स अटेंशन टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज द कोर ऑफ ऑल बिजनेस प्रैक्टिसेस विदाउट विच एनी बिजनेस विल प्रूव टू बी अ कॉलोसल फेलियर। मार्केटिंग क्या है? बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए कोर है, एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है ये। ठीक है, बहुत ही, जैसे हम बोल सकते हैं, मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो मार्केटिंग को अडॉप्ट नहीं करता, तो इट मीन्स उनकी फेलियर फॉर श्योर है। दीज एक्टिविटीज मेनली इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको अडॉप्ट करनी होती है या फिर आपको करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, कलेक्ट करना है, और उस इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आप करते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग प्लानिंग। जब आपने एक रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो आप क्या करते हो? मार्केट से रिलेटेड प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो कि मीन्स एट प्रेजेंट कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसमें क्या फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो कस्टमर और चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट में ऐड हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो। जब आपने प्लानिंग कर दी, देन यू हैव टू डू प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आप प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करते हो और उसकी डेवलपमेंट कर देते हो। व्हेन you have done the process of product designing and development, then you have to go towards the standardization grading। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उन्हें ग्रेडिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स ए ग्रेड प्रोडक्ट है, बी ग्रेड प्रोडक्ट है, तो आपने अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, क्वालिटी, आपने क्या करना है? उसकी स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करनी है। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग एटसेट्रा। ये जो हमने अभी पढ़े हैं ना पॉइंट्स, ये आगे आपके आएंगे, प्रॉपर डीपली आएंगे। ठीक है, ये आपके फंक्शंस भी होते हैं मार्केटिंग के। ठीक है, तो हम ये फर्दर क्लासेस में, अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, नाउ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द हैरी एल हैंसन, marketing is the process of discovering and translating the consumer needs and wants into product and service specification, creating demand for these products and services, and then expanding the demand। ठीक है, देखो, एक प्रोपाउंडर है हमारे हैरी एन हैंसन। इन्होंने मार्केटिंग डेफिनेशन दी है, जिसमें क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कुछ डिस्कवरी करते हो, ट्रांसलेट करते हो आप कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स को इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशन। जो भी कस्टमर की नीड्स हैं, जो कस्टमर्स की वांट्स होती हैं, आप उसे कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर। ठीक है, और आप क्रिएट करते हैं डिमांड्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए आप डिमांड को क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और क्रिएट कैसे करते हैं आप? जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हो अबाउट योर प्रोडक्ट, एंड देन एक्सपैंडिंग द डिमांड। और फिर धीरे धीरे कुछ एफर्ट्स लगाकर आप क्या करते हैं? अपने डिमांड की एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हो। जो भी प्रोडक्ट की आपकी डिमांड आ रही है ना, उसको आपने एक्सपैंड करना है।
ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसका क्या, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं, फिर हमने एक डेफिनेशन की. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर. Thanks and have a wonderful day.